ساتھ نہیں دو شہزادے کیوں ساتھ نہیں کیوں ساتھ عباس تیرا نہیں زہرا کی جا شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی راہ نہیں زہرا کی جا شرما نہیں وہ بچی جس کو سینے پہ شبیر سلایا کرتے تھے وہ بچی جس کو سینے پہ شبیر سلایا کرتے تھے میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی میری آنکھیں ڈھونڈ کے ہار گئی کہیں ملتا اس کا پتہ نہیں زہرا کی جا شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی راہ نہیں زہرا کی جا شرما نہیں ایک اونچا دہن معصوم بتا نام جس کا اصغر رکھا تھا ایک اونچا دہن معصوم بتا نام جس کا اصغر رکھا تھا کیوں خالی گود رباب کی ہے کیوں خالی گود رباب کی ہے اسباب میں کیوں جھولا نہیں زہرا کی جا شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی راہ نہیں زہرا کی جا شرما نہیں ریحان کرو ہر دم ماتم تم نوحہ پڑھو ہر دم سرور ریحان کرو ہر دم ماتم تم نوحہ پڑھو ہر دم سرور یہ ایک عبادت ہے ایسی یہ ایک عبادت ہے ایسی جو ہوتی کبھی بھی قضا نہیں زہرا کی جا شرما نہیں تیرے نانا کا یہ روزہ ہے کوئی کوفہ شام کی راہ نہیں زہرا کی جا شرما نہیں پر محمد والے محمد صلوات باوا دے بلندر تلوار رحم اللہ من قرأ الفاتحہ بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمة للعالمین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد قال اللہ الحکیم فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا
فأحياكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون صلى الله عليه وسلم۔ یہ سال ثواب کی مجلس ہے، لہذا آپ سے درخواست ہے کہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر سجاد باقری ابن شاہد باقری، شمع بی اتار اور میرا صاحب ابن حسن پاک صادق کے لیے اصال کریں۔ صلوات پڑھ کر محمد وعلی محمد۔ جس آیت کی تلاوت کی گئی ہے اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس پر تھوڑی سی بات کرنے سے پہلے ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ رسول خدا نے فرمایا زینا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، آپ اپنے مجلسوں کو زینت دو حضرت علی علیہ السلام کے ذکر سے۔ صلوات پڑھے پر محمد ایک حدیث ہم مولا کائنات کی شان میں بیان کر کے جو بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تبارک و تعالی، رسول خدا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جعل الاخی علی ابن ابی طالب، اللہ نے بنایا ہے میرے بھائی حضرت علی علیہ السلام فضائل لا یصادها، اتنے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اتنے فضائل مولا کائنات کی ہیں، اتنے فضائل حضرت علی علیہ السلام کی ہیں کہ دنیا گن نہیں سکتی، اس کا عدد ہی نہیں کر سکتے۔ فمن ذکر فضیلتاً، فرمایا جو ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہے، چاہے منبر سے ہو، چاہے نشست میں ہو، چاہے دوستوں میں ہو، ایک فضیلت کو ذکر کرتا ہے من فضائل، فضیلتوں میں سے، وہ مقرم بہا، اور اس کا اقرار بھی کرتا ہے، غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، تو اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، چاہے وہ پہلے کیے ہوں یا بعد میں ہونے والے۔ صلوات پڑھے بر محمد۔ جو ذکر کرتا ہے یہ فضیلت، بے شمار فضیلتیں ہیں، قرآن خود مولا کائنات کا قصیدہ ہے، اور اتنی فضیلتیں صرف ایک ذکر کرتا ہے، ذکر۔ دوسری بات ومن کتب فضیلتاً، جو لکھتا ہے، یہ تو ذکر کی بات ہوئی زبان سے، جو لکھتا ہے ومن کتب فضیلۃ من فضائل، فضیلتوں میں سے، مولا کائنات کی فضیلتوں میں سے ایک فضیلت لکھتا ہے علی بن ابی طالب، لم تزید ملائکہ تستغفر له ما بقی لتلک الکتاب رسم، یعنی جب تک اس کتاب میں وہ فضیلت لکھی رہے گی اس وقت تک ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد بولنے کی بات ہوئی، ذکر کرنے کی بات ہوئی، لکھنے کی بات ہوئی۔ اب ومن اسمع الى فضیلۃ من فضائلہ، جو سنے گا، اب میں ذکر کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، جو سنے گا فضیلتوں میں سے ایک فضیلت مولا کائنات کی، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسب بالاستماع، جو بھی کانوں سے گناہ کیے ہوں گے اللہ اس کے کانوں کے گناہوں کو معاف کر دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ایک صلوات پڑھے گا ومن نظر الی کتابتی،
मिन फज़ाइलिन गफ़रल्लाहु लहु ज़ुनूबुल्लती इक्तसबा बिन नज़र, जो देखेगा, जो लिखा हुआ देखेगा, एक सवा पढ़े जो देखेगा फजीलतों में से किसी फजीलत को, तो अल्लाह उसके आंखों से किए हुए गुनाहों को माफ कर देगा। जो सुनेगा, अल्लाह उसके कानों से किए हुए गुनाहों को माफ करेगा। जो लिखेगा, अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देगा, जब तक उस किताब में वो लिखी हुई चीज होती है। जब जो जिक्र करेगा तो अल्लाह उसके तमाम गुनाहों को माफ करेगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते हैं हमारी जो आयत है उसकी तरफ। अल्लाह कह रहा है, कैफा तकफुरूना, तुम किस तरह कुफ्र कर सकते हो, किस तरह इनकार कर सकते हो अल्लाह का। वो कुंतुम अमवातन, तुम तो थे ही नहीं, मौत की हालत में थे। इंसान, आज मैं फिर भी 50 साल हूं, 50 साल पहले, 60 साल पहले आप देखेंगे, हल अता अलल इंसान हीन मिन अद-दहर लम यकुन मस्कूरा शय्यन मस्कूरा, वो जिक्र के लायक इंसान नहीं था। कोई कहता था कि कोई मौलाना मोमिन है, 50 साल के बाद आने वाले कोई कहेगा। पैदा होने से पहले कोई किसी का जिक्र ही नहीं था उस इंसान का। हम मौत की हालत में थे। कुंतुम अमवातन फअहयाकुम, अल्लाह ने जिंदा किया, अल्लाह ने बनाया, अल्लाह ने जिंदा किया। फअहयाकुम सुम्मा युमीतुकुम, फिर मरोगे। सुम्मा युमीतुकुम, फिर उठाएगा अल्लाह। यानी मौत की हालत में थे, अल्लाह ने बनाया, अब फिर एक मर्तबा ऐसा आ जाएगा कि फिर मौत में जाओगे और फिर अल्लाह उठाएगा। सुम्मा इलैहि तुरजऊन, फिर तुम उसकी तरफ चले जाओगे। अब ये किसको कह रहा है अल्लाह? मुसलमानों को कह रहा है, मुनाफिकों को कह रहा है, मुशरिकों को कह रहा है, काफिरों को कह रहा है, नसारा को कह रहा है, या यहूदियों को कह रहा है? किसको कह रहा है? इंसान को कह रहा है, तमाम इंसानियत को कह रहा है। क्योंकि तमाम इंसानियत मुर्दा थी, तमाम इंसानियत को अल्लाह ने पैदा किया, इंसानियत तमाम मर जाएगी, फिर अल्लाह उठाएगा। तो यहां कहने का मतलब यह है कि कुरान के अंदर जितनी भी बातें हैं वो कभी मुसलमानों की बात हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर सिर्फ मुसलमानों की बात हो रही है। कभी या अय्युहन नबी कहकर नबी को पुकारा जा रहा है, कभी या अय्युहर रसूल कहकर रसूल को पुकारा जा रहा है, कभी या बनी इसराइल कहकर बनी इसराइल की बात हो रही है, सिर्फ एक कौम गई। कभी या अय्युहन नास कहकर पुकारा जा रहा है कि अय लोगों। अभी लोग का मतलब क्या है? तमाम इंसानियत। यहां पूरी इंसानियत की बात आ रही है। अगर ये बातें भी अगर हम दूसरों को पहुंचाएंगे तो हो सकता है वो भी ईमान लाएं। क्यों? क्योंकि कुरान सिर्फ मुसलमानों का कुरान नहीं है, इस्लाम मुसलमानों का दीन नहीं है, काबा मुसलमानों का काबा नहीं है, रसूल खुदा सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन है, तमाम रब, तमाम इंसानों का रब। रसूल खुदा रहमतुल आलमीन है, तमाम इंसानों के रहमत। उसी तरीके से कुरान है जिक्रुल लिल आलमीन है, तमाम इंसानों के लिए जिक्र है। इसीलिए इंसानों की भी बात हो रही है यहां पर। क्या बोलते कि अय लोगों, या अय्युहन नास, अय लोगों, उबुदू, तुम इबादत करो। अब लोगों को कह रहा है, इंसान मुसलमानों को नहीं कह रहा, लोगों को कह रहा है तुम इबादत करो। रब्बुकुम, तुम्हारे रब का। अल्लाह उनको अपना बंदा कह रहा है। ये और बात है कि इंसान अपने रब को नहीं पहचान रहा, अपने रब को रब नहीं कह रहा, बल्कि दूसरे को किसी को रब कह रहा है। लेकिन अगरचे इंसान अल्लाह को ना पहचाने तो इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि रब भी उसको ना पहचाने। रब तो उसको पहचानेगा ही, रब तो उसको बंदा मानेगा ही। तो इसलिए कह रहा है कि तुम अल्लाह की इबादत, मेरे तुम्हारे रब की इबादत करो, जो तुम्हारा रब है। अल्लज़ी, कौन रब? अब पूछ सकता है, अगर किसी को आप कहेंगे कि रब की इबादत करो, कौन रब?
अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। वो रब जो तुमको पैदा किया, तुम्हारे बाप दादा को पैदा किया। बहुत सी मर्तबा ऐसा हुआ है कि लोग कहते थे कि जब पैगंबर आते थे तो कहते थे कि तुम अल्लाह की इबादत करो, तो वो कहते हैं कि हम उसकी इबादत करेंगे जिसको हमने अपने आबा व अजदाद को पाया, इबादत करते। तो यहाँ अल्लाह ये कह रहा है कि तुम्हारे बाप दादा को भी अल्लाह ने उनको हमवार किया, तुम्हारे लिए बिछौना बनाया। अभी तो बनाया इंसान को, क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए बिछौना बनाया है? बिछौना मतलब ये बिछौना सबको नहीं है, यानी इस तरीके से हमवार किया कि आप वहां पर आराम से रह सकते हैं, आराम से चल सकते हैं, आराम से सांस ले सकते हैं। आप दूसरे इस पर जाइए, प्लैनेट्स पर, वहां या तो बर्फ रहेगा कि इंसान की जिंदगी नहीं हो सकती, या इतनी गर्मी रहेगी इंसान की जिंदगी नहीं हो सकती, या वहां पर हवा नहीं रहेगी इंसान की जिंदगी नहीं हो सकती। यहाँ पर ऐसा माहौल होगा कि दिन नहीं होगा, वहां इंसान जी नहीं सकता, रात नहीं होगी वहां इंसान नहीं जी सकता, पानी नहीं होगा वहां इंसान नहीं जी सकता। लेकिन अल्लाह ने इस इंसानी जिंदगी, इस दुनिया को इस तरह बनाया है कि यहाँ दिन भी हो रहा है, रात भी हो रही है, बारिश भी गिर रहा है, हवा भी उस तरीके से है, ज्यादा हाई डिग्री नहीं है कि तुम्हारे बदन को जला दे, ऐसा कम भी नहीं है कि तुम्हें जमा दे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं इसी आयत की तफसीर में कि किस तरह अल्लाह ने जमीन को बनाई। जाला मलाई मतन ली तबाइकुम मुवाफिकतन ली अजसादिकुम, तुम्हारे जिस्मों को मुवाफिक हो, तुम्हारे जिस्म के लिए आसानी हो, इस तरह से जमीन बनाई है। ऐसा जमीन कहीं भी नहीं है। आज जो साइंटिस्ट जो दावा करते हैं मार्स पर जाएंगे, पानी ढूंढेंगे, कुछ नहीं होता है, कहीं भी पानी नहीं है। सिर्फ वो डोनेशन लेने के लिए पूरे अरबे है नासा के, समझ रहे आप। चांद पर भी जो गया उस पर भी अमेरिका ने ये चाल चली कि मैं गया हूं। अगर चांद पर उस वक्त इंसान जाता होता तो आज आराम से जाया होता। जैसे एक गाड़ी बनाई, पहले किस तरीके से गाड़ी बनाई, वो जो चाक होते हैं लकड़ी की चाक से दो पहिए और एक घोड़ा होता था सामने, इस तरीके से गाड़ी होती थी। उसके बाद थोड़ा इंसान तरक्की किया, तरक्की करने के बाद फिर वही चाक रहा, फिर आगे कुछ इंजन आ गए। आज देखिए कैसे कैसे गाड़ियां घूम रही हैं। तो अगर उस वक्त चांद पर गया होता तो आज आराम से क्रेन भी बनाते, कुछ प्लेन भी बनाते इस तरीके से जो आराम से चांद पर। आज नहीं जा रहा है इंसान चांद पर, क्यों नहीं जा रहा है? जाना मुमकिन नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सी चीजें थियरीज में है, इंसान को भटकाया गया है। तो अल्लाह इमाम ज़ैनुल आबिदीन क्या फरमाया है कि जाला मलाइमतन ली तबाइकुम मुवाफिकतन ली अजसाद, तुम्हारे जिस्मों को जिस तरीके से, अगर आप अरब में जाएंगे तो 47 57 डिग्री हरारत है, वहां पर एसी के बगैर नहीं रह सकते। अगर मान लो यार 80 हो गया तो क्या करेंगे? जल जाएगा इंसान। अगर आप किसी वेस्टर्न कंट्रीज में जाएंगे तो वहां पर 0 डिग्री और -5 डिग्री हो जाता है। अगर यहां -50 डिग्री हो गया तो जम जाएगा इंसान। जमीन पर ऐसी निशानियां भी छोड़ी है अल्लाह ने। अगर आप थोड़ी एक कंट्री में जाएंगे तो वहां 6-6 महीने रात नहीं होती। अगर इंसान को अल्लाह यहां पर इस तरीके से बना देगा कि रात को रात रखे तो कौन है दिन लाएगा? अगर दिन को दिन रखे, कुल अरायतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुल लैला सरमदन इला यौमिल क़ियामा मन इलाहन गैरुल्लाहि यातिकुम बिज़िया, अगर अल्लाह रात को रात रखे तो कौन अल्लाह के सिवा दूसरा खुदा है जो तुम्हें दिन लाएगा? कुल अरायतुम इन जालल्लाहु अलैकुमुन नहारा, जब तुम देखो कि अल्लाह अगर दिन को दिन रखे, मन इलाहुन गैरुल्लाहि यातिकुम बिल्लैलिन तस्कुनूना फीह, तो अल्लाह कौन दूसरा तुम्हारा खुदा है जो ऐसी रात लाए जिसमें तुम सुकून की नींद सोते हो? वमिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहार, अल्लाह अपनी रहमत से दिन और रात बनाया है।
ومن रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन्नहार लितस्कुनु फीही वलितब्तगु मिन फज़लिही वलअल्लकुम तशकुरून। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद ताकि तुम दिन में सुकून की नींद, रात में तुम सुकून की नींद सो और दिन में काम करो और तुम अल्लाह का शुक्र अदा करो। तो ये खत्म करके आपकी जहमत तमाम करूंगा। फिर इमाम ज़ैनुल इस्लाम का जो खुतबा है, इमाम क्या फरमाते हैं कि ऐसी जमीन बनाई कि तुम्हारे जिस्मों के मुताबिक है, यानी ना ज्यादा गर्म हरारत में है, वला शदीदुल लब्न कलमा, और ना इतनी नरम है जमीन पानी के जैसे कि तुमको ढका दे, ऐसी भी जमीन नहीं है। वला शदीद सलालती फतमना अलैकुम फी दूरिकुम व बैतिकुम व कुबूर मौताकुम, और इतनी सख्त भी नहीं है जमीन, इतनी सख्त भी नहीं है कि तुम फोड़ नहीं सकते, उसमें खड्डा नहीं निकाल सकते, उसमें गड्ढा नहीं निकाल सकते, क्योंकि तुम्हें मुर्दों को गाड़ना है, तुम्हारे घर बनाना है। लेकिन आप दूसरे इसमें जाइए तो आप उसको खोद भी नहीं सकेंगे। ऐसी जमीन अल्लाह ने दी, तो लिहाजा इंसान को शुक्र करना चाहिए कि अल्लाह ने किस तरह हमारे लिए जमीन बनाई, और ये जमीन सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बनाई बल्कि तमाम इंसानियत के लिए बनाई है। तमाम इंसानियत को अल्लाह कह रहा है कि तुम अपने रब की इबादत करो, जिसने तुमको इस तरीके से जमीन बनाई, तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुमको इस तरीके का दिन दिया, इस तरीके का रात दी कि तुम सुकून से सोते हो और फिर सुबह उठते हो, अपने काम पर जाते हो। इस तरीके से जमीन तुम अपने रब की इबादत करो। और फिर फरमाया तुम तो थे ही नहीं, अल्लाह ने तुमको जिंदा किया, फिर अल्लाह तुमको मौत देगा, फिर एक दिन कयामत के दिन उठाएगा और फिर वो हिसाब लेगा। ये तमाम इंसानियत के लिए अल्लाह फरमा रहा है। एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद। तो देखा अज़ीज़ान इकराम, दीन जो है इंसानियत का दीन है, इस्लाम है इंसानियत का दीन है, इस्लाम है हक्कानियत का दीन है, इस्लाम है इंसाफ का दीन है, इस्लाम है अदल का दीन है। इसी दीन को जब पामाल किया गया, इस दीन के जो सिस्टम है उसको खत्म करने की कोशिश की यजीद की तरफ से, तब जाके इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क़याम करना पड़ा। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने खुतबात में, जब से मदीने में ये जो बात हुई है, जो पहला खुतबा जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दिया कि हम अहले बैतुन नबुवा है, हम नबूवत के घराने वाले हैं, और यजीद कौन है, किस फुज्र करने वाला है, ऐलानिया, वो शारिबुल खम्र है, वो शराब पीने वाला है, ऐसो कि हम लोग बैत कैसे कर सकते हैं। और खिलाफत का हक किसका है? पहली बात तो जमीन पर खिलाफत का हक हमारा है, कहने का मतलब वही है। अब जब जुल्म हो रहा है तो मैं इस मदीने से निकलता हूँ। मदीने से निकले हैं मौला का मोहम्मद हुसैन इस्लाम 4 महीने मक्के में रहे हैं। जब 4 महीने मक्के में रहे तो लोगों को यही समझाते गए कि दीन में किस तरह दीन को कायम करना है, किस तरह इंसाफ को कायम करना है, आप लोग क्या कर रहे हैं। और फिर जब लोग नहीं समझे तो एक मर्तबा लोग समझाते थे इमाम हुसैन इस्लाम को, आप यहीं पर रहिए क्योंकि ये अमन की जगह है, ये अमन की जगह है। लेकिन जब निकलना ही था तो इमाम इस्लाम सबको यही समझाते थे कि मेरा रास्ता तय है, मेरी मंजिल तय है। मोहम्मद हनफिया समझाते थे, सब लोग समझाते थे। लेकिन इमाम हुसैन इस्लाम ये कहते थे कि जो भी मेरे रास्ते पर चलना चाहता है उसको शहीद होना पड़ेगा। ये मदीने से समझा रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग समझ नहीं रहे। उल्टा इमाम हुसैन इस्लाम को समझा रहे कि आप यहीं पर रहो, अगर आप जाना चाहते हैं। जब इमाम हुसैन इस्लाम ने मोहम्मद हनफिया को कहा कि नहीं मेरा रास्ता तय है, रसूल खुदा ने मुझे फरमाया है कि यहां से निकलो, तो कहा कि ठीक है, अगर आपका रास्ता तय है तो अपने हरम को क्यों लेकर जा रहे हैं, अपने पूरे खानदान को क्यों लेकर जा रहे हैं। तो कहा कि हाँ, अल्लाह इनको भी असीर देखना चाहता है, हमको शहीद देखना चाहता है, इनको असीर देखना चाहता है। रास्ते में भी समझाए, जब फरसत मिले हैं उनको भी समझाए, जब हो रहे हैं उस वक्त भी एक खुतबा दिया है। उसी तरीके से करबला पहुंचे हैं, करबला में भी कोशिश की इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कि जंग शुरू होने से पहले उनको समझाया जाए।
यहाँ तक कि जिस दिन जंग शुरू हो रही थी यानी आशुरा, उस सुबह भी इमाम हुसैन इस्लाम ने लोगों की नजात का रास्ता सोचा, लोगों को नजात देने का रास्ता सोचा। आज भी समझने की बात है, आप मेरे खून पे क्यों प्यासे हैं? अपने आप को पहचानवाया, क्या मेरे नाना रसूल खुदा नहीं है? क्या मेरे बाबा मौलाए कायनात नहीं है? क्या मेरी माँ फातिमा नहीं है? सब कुछ समझाया, लेकिन इन पर कुछ असर नहीं हुआ, क्योंकि इनके पेट हराम से भरे हुए थे। एक एक को शहीद किया गया, और यहां तक कि जब असर आशुर आई, इमाम हुसैन इस्लाम शहीद हो गए और शाम गरीबा आई, तो क्या क्या मजालिम उठाए गए। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम जो बीमार थे, उनके नीचे से बिस्तर खींचा गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम रोते रोते यही कहते थे कि क्या क्या जुल्म उन पर हुए हैं। कहा कि हमें एक ऐसे बेपालान ऊंटों पर बिठाकर लेकर जाया गया। बीबी सकीना फरमाती हैं कि छोटा जो जुल्म मेरे ऊपर हुआ कि मुझे नींद नहीं थी। जब भी एक बेपालान ऊंट पर, एक लागर ऊंट पर मुझे बिठाया गया, जब ये ऊंट गिरता था तो मैं गिरती थी, और जब मैं गिरती तो मुझे ताज़ियाने मारे जाते थे। इसी तरह ये काफिला कुफा से शाम पहुंचा। फिर एक मर्तबा जब रिहाई मिली तो यही काफिला जब वापस मदीने आया तो मदीने के बाहर रुका, और वहां पर एक मजलिस बर्पा की गई, और उस मजलिस में उम्मे कुलसूम ने एक नोहा पढ़ा। कहा कि ऐ नाना के मदीने, हम किस तरह आपके अंदर दाखिल हों कि जब हम जा रहे थे तो हमारे साथ अब्बास भी थे, और हमारे साथ अली असगर भी थे, और हमारे साथ अली अकबर भी थे, हुसैन भी थे, लेकिन अब जब वापस आए हैं तो ना हुसैन है, ना उनो मोहम्मद है, ना अली असगर है, ना अली अकबर है। एक मर्तबा अपने नाना की तरफ मुंह करके कहा कि नाना जान, आप देखते कि किस तरह हमें बेपालान ऊंटों पर बिठाकर बेमखना वो चादर फिराया गया। एक मर्तबा अपने अम्मा की कब्र पर रुक करके कहा कि अम्मा, आकाश आप जान दी कि किस तरह ये जालिम हमें बेपालान ऊंटों पर बेमखना वो चादर लेकर गए। सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युम कलिबin यनक़लिबून इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ऐ अल्लाह, जो कुछ तेरी बारगाह हमें पढ़ा गया है वो कबूल फरमा, सामाइन के खुलूस को कबूल फरमा। इनके जो हाजात हैं ऐ अल्लाह, उनके हाजात को बरला। इनमें जो मकरूज हैं उनके कर्जों को अता कर। ऐ अल्लाह, इनमें जो बीमार हैं उनकी बीमारी में शिफायाब अता फरमा। इमाम ज़मान के ज़ुहूर में ताजिल फरमा, हमें उनके नासुर में शुमार फरमा। एक मरतबा फिर सूरह फातिहा और 3 कुल पढ़कर सज्जाद बाकरी, इब्न शाहिद बाकरी, शमादी अत्तार, मीरा साहब इब्न हसन ताज़ादी के लिए इसाल फरमा, तमाम मरहूमीन के लिए इसाल फरमा। बिस्मिल्लाह।